مسلمانوں سے کہا گیا کہ اے مومنو، تم تھوڑے داموں میں اللہ کی آیتوں کو نہ بیچو۔ کیا مطلب؟ کہ ایک ایک آیت کو کوئی لے جا کر کے بازار میں سودا کرتا ہے؟ نہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی دین کے بدلے میں دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرے، تقریر کرے اور اس سے وہ نیت کرے کہ اس سے ہم کو پیسہ کمانا ہے، مدرسہ چلائے اور اس سے مراد اس کی یہ ہو کہ ہمارے لیے یہ بزنس ہے، پیری مریدی کرے اور وہ یہ سمجھے کہ اس کے ذریعے ہم دنیا حاصل کریں گے۔ اور ایک مطلب اور ہے کہ جو یہود و نصارہ کیا کرتے تھے، آج بھی کچھ لوگ جانے انجانے میں وہ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ پیسوں کی لالچ میں خدا اور رسول کے احکام میں لوگ تبدیلیاں کر رہے ہیں۔ چہرہ دیکھ کر کے لوگ مسئلہ بتا رہے ہیں، چہرہ دیکھ کر کے لوگ حکم بتا رہے ہیں، وہی کام ایک عام آدمی کرتا ہے تو ہر مولانا کہتا ہے کہ تم پہ توبہ لازم ہے، توبہ کرو۔ کسی سے کہا جاتا ہے توبہ کر کے کلمہ پڑھو، نکاح بھی کرو۔ مرید تھے تو تمہاری بیعت ٹوٹ گئی ہے، لیکن وہی جرم جب کوئی پیسے والا کرتا ہے، جب کوئی اپنا کرتا ہے، جب کوئی بڑا آدمی کرتا ہے تو وہاں لوگ ہیلا بہانہ تراش کرتے ہیں۔ یہ کام یہود و نصارہ کیا کرتے تھے کہ ان کے یہاں جب کوئی امیر آدمی، بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو پیسے لے کر کے حکم بدل دیا کرتے تھے۔ قرآن نے ان تمام باتوں سے ہمیں اور آپ کو متنبہ فرمایا اور ہمیں بتایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ مسلمانوں حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر کے حق کو نہ چھپاؤ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو حق اور باطل کو ملانا چاہتے ہیں۔ آج کے زمانے میں آپ عام طور پہ دیکھیں گے کہ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آج کسی کو برا کہنے کا زمانہ نہیں ہے، آج مثبت انداز میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات پڑھے لکھے لوگ کہہ رہے ہیں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے ہاتھوں میں ہزاروں لوگوں نے اپنا ہاتھ دے رکھا ہے، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم جنت میں جائیں گے، حالانکہ جو یہ بتا رہے ہیں یہ جنت کا راستہ نہیں ہے بلکہ یہ راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حق اور باطل کو ایک ساتھ بٹھا دیا جائے، شیر اور بکری کو ایک ساتھ بٹھا دیا جائے۔ آپ یاد رکھیں کہ شیر کے ساتھ اگر بکری کو باندھا گیا تو بکری کا جو حشر ہوگا وہی حال ان سنیوں کا ہوگا کہ جب سنیوں کو دیوبندیوں کے ساتھ بٹھایا جائے گا، جب سنیوں کو وہابیوں کے ساتھ بٹھایا جائے گا، جب سنیوں کو شیعوں کے ساتھ بٹھایا جائے گا۔ اور یہ جھگڑا آج کا جھگڑا نہیں ہے بلکہ جھگڑا ابتدا سے چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آدم علیہ السلام کے سجدے کا حکم دیا گیا تو فرشتوں نے سجدہ کیا، شیطان نے انکار کر دیا، اختلاف کی بیج پڑ گئی۔ وہیں سے ایک طرف شیطان اور دوسری طرف حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ زمانہ گزرتا رہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، ایک طرف اللہ کے پیغمبر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود ہے۔ کسی نے یہ نہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے ساتھ بٹھایا جائے یا نمرود کو ابراہیم علیہ السلام کی فہرست میں کھڑا کیا جائے۔ ایک دور آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون آتا ہے، ایک طرف حق ہے دوسری طرف باطل ہے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، کوئی زمانہ ایسا نہیں آیا کہ جب حق رہا ہو باطل نہ رہا ہو یا باطل رہا ہو حق نہ رہا ہو، بلکہ دونوں گروہ پیرل چلتے رہے۔ ایک طرف حق کے نمائندے حقانیت کا اعلان کرتے رہے، دوسری طرف باطل پرست اپنے باطل مذہب کی تبلیغ و اشاعت کرتے رہے۔ ہمارے نبی کا زمانہ آیا آج سے 1400 سال پہلے، حضرت عیسیٰ روح اللہ کے بعد اللہ نے اپنے آخری نبی کو اس دنیا میں بھیجا، اپنے آخری پیغمبر کو بھیجا۔ ہمارے نبی آئے، وہ زمانہ بھی باطل پرستوں سے خالی نہیں تھا، مشرکوں سے خالی نہیں تھا، غالیوں سے خالی نہیں تھا، پاپیوں سے خالی نہیں تھا، گنہگاروں سے خالی نہیں تھا، جھوٹ بولنے والوں سے خالی نہیں تھا، بلاتکاریوں سے خالی نہیں تھا، غیبت اور چغلی کرنے والوں سے خالی نہیں تھا، اللہ کی عبادت سے انکار کرنے والوں سے خالی نہیں تھا۔ ایک طرف ہمارے نبی ہیں جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ایک اللہ کے سوا
کوئی معبود نہیں ہے، وہیں دوسری طرف ابو جہل ہے، دوسری طرف ابو لہب ہے. یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے. چلتے چلتے ہمارے نبی کے بعد جب حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ آتا ہے، وہ زمانہ آیا، ایک طبقہ ایسا پیدا ہوتا ہے کہ جس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا. ایک طبقہ وہ کھڑا ہوا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا. ہمارے نبی کے بعد کسی نبی کا امکان ہی نہیں ہے، کوئی نبی پیدا ہو ہی نہیں سکتا ہے. کئی مرد کھڑے ہوئے، ایک عورت بھی کھڑی ہوئی. اس نے کہا کہ حضور نے جو یہ فرمایا ہے کہ لا نبی بعدی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی مرد نبی نہیں ہوگا. عورت کے بارے میں تو حضور نے نہیں فرمایا ہے. یہ انکار ختم نبوت کا سلسلہ چلا. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے ان کا قلعہ کما کیا. یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا، آگے بڑھتا رہا. اب آپ بالکل قریب آ جائیے. حضرت سیدنا مجدد الفسانی کا دور آتا ہے. ایک گروہ ایسا پیدا ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ اب دین کو نئے طریقے پر، اپنے طریقے پر چلانے کی ضرورت ہے، اور اس دین کو ایک نیا نام دیا گیا. اسلام کے بجائے اسے دین الہی کہا گیا. حضرت مجدد الفسانی نے اس زمانے میں بادشاہ سے سمجھوتا نہیں کیا، بلکہ بادشاہ کے خلاف خود بھی جہاد فرماتے رہے. اپنے مریدین کو، اپنے خلفاء کو، اپنے پیروکاروں کو لگائے رہے کہ بادشاہ کی گمراہی میں لوگ مبتلا نہ ہو. حضرت مجدد الفسانی دین الہی کا مقابلہ کرتے رہے، اکبر کی کفر کا مقابلہ کرتے رہے، اس کا جواب دیتے رہے. اکبر کے بعد ایک زمانہ آتا ہے، وہ زمانہ اشرف علی تھانوی کا ہے، قاسم نانوتوی کا ہے، پیر سید احمد خان نیچری کا ہے، قاسم نانوتوی کا ہے. ان گمراہ لوگوں کا ہے. اس زمانے میں جب ہمارے دین پر حملہ ہو رہا تھا، ہمارے عقیدے پر حملہ ہو رہا تھا، نبی کی عظمت میں حملہ ہو رہا تھا، نبی کے علم پر حملہ ہو رہا تھا، نبی کے اختیار پر حملہ ہو رہا تھا، اہل بیت کی عظمت میں حملہ ہو رہا تھا، صحابہ کی عظمت میں حملہ ہو رہا تھا. ایسے زمانے میں اللہ تعالی نے بریلی کی سرزمین پر اپنے ایک بندے کو کھڑا کیا. اس بندے کا نام امام احمد رضا ہے. اسے دنیا نے مجدد اسلام کہا. امام احمد رضا نے اپنے زمانے میں قاسم نانوتوی کا رد کیا، اشرف علی تھانوی کا رد کیا، خلیل احمد امبیٹوی کا رد کیا، ان تمام فتنوں کا رد کیا. اور وہ صرف اتنے ہی پر موقوف نہیں رہا، بلکہ سر سید احمد خان نے ایک یونیورسٹی قائم کیا. مدرسے کے نام سے وہ قائم کیا تھا، مدرسۃ العلوم کے نام سے، ایمو کالج جسے کہا جاتا تھا. اس نے بہت سی کتابیں لکھی، یہاں تک کہ تفسیر کی کتاب لکھی. آج ایک بات آتی ہے کہ جب کوئی مولانا غلطی کرتا ہے، اور بڑا مولانا غلطی کرتا ہے، بڑا پروفیسر غلطی کرتا ہے، بڑا ڈاکٹر غلطی کرتا ہے، تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہنے کے لیے کہ انہوں نے بہت کام کیا ہے. کیا ان کے تمام کارناموں کو آپ بھلا دیں گے؟ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، اشرف علی تھانوی نے کم کام کیا تھا کیا؟ سر سید احمد نے کم کام کیا تھا کیا؟ آپ نے مدرسہ کھول دیا تو بہت بڑا کام کر دیا. ایک یونیورسٹی میں سینکڑوں مدرسے پیدا ہوتے ہیں، ایک یونیورسٹی میں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں طلباء علم حاصل کرتے ہیں. آپ کے پڑھائے ہوئے لوگ مؤذن بنتے ہیں، ان کے پڑھائے ہوئے لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں، آپ کے پڑھائے ہوئے مدرس بنتے ہیں، آپ کے پڑھائے ہوئے لوگ 5,000 پہ نوکری کرتے ہیں، اور یونیورسٹی کا پڑھا ہوا 50,000 پہ نوکری کرتا ہے. کام آپ نے کیا ہے تو کام انہوں نے بھی کیا ہے. سر سید احمد خان نے صرف یہ نہیں کہ اردو کی کچھ کتابیں لکھ دیا ہو، بلکہ بڑی بڑی کتابیں لکھی. قرآن کی تفسیر لکھا. اسی قرآن کی تفسیر میں اس نے یہ لکھا کہ فرشتوں کا خارجی وجود نہیں ہے، جناتوں کا وجود نہیں ہے، شیطان کا وجود نہیں ہے، قرآن کلام الہی نہیں ہے، یہ وحی نہیں ہے. اور جن معجزات کا اظہار رسول پاک کے دستے کرم پہ ہوا، اس نے انکار کیا، جنت کا انکار کیا، جہنم کا انکار کیا. آج جب علماء سر سید کے بارے میں اپنے نظریات کا اظہار کرتے ہیں تو جاہل ٹائپ کے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا لوگ عصری تعلیم کے مخالف ہیں، انگریزی علوم کے مخالف ہیں، انگریزی تعلیم کے سبب سے مولانا لوگوں نے سر سید کو کافر کہا. نہیں، مولانا لوگوں نے انگریزی کی بنیاد پر سر سید کو کافر نہیں کہا. مولانا لوگوں نے اگر سر سید کے خلاف کوئی حکم لگایا ہے تو اس لیے کہ جو اس نے غلط عقائد اپنی کتابوں میں لکھے اس پہ اڑا رہا، توبہ نہیں کیا، اسی طرح مر گیا. اب مجھے کہنے دیجیے، یونیورسٹی قائم کرنے والا غلط عقیدے کی بنیاد پہ اگر مجرم ہو سکتا ہے، بڑا امام اور مولانا
तफसीरें लिखने वाला, कुरान का तर्जमा लिखने वाला, बड़े बड़े इदारे कायम करने वाला, अगर गलत अकीदा रखने की बुनियाद पे हुक्म शरा में माखूज हो सकता है तो आज क्या कोई आदमी उससे मुस्तस्ना हो सकता है? नहीं, मुस्तस्ना नहीं हो सकता। हुजूर आला हजरत के जमाने में देवबंदियत का फितना था, कादियानियत का फितना था, नेचरियत का फितना था, अबुल आला मौदूदी का फितना था, गैर मुक़ल्लिदियत का फितना था। इमाम अहमद रज़ा ने बैक कलम उन तमाम फितनों का मुकाबला किया, और इतना ही नहीं किया बल्कि सुन्नियत के नाम पर राफ़ज़ियत को जब फैलाया जा रहा था तो आला हजरत ने रिसाले ताज़ियादारी लिखा। तसव्वुफ के नाम पर, मौला अली की मोहब्बत के नाम पर सहाबा की तौहीन की जा रही थी। इमाम अहमद रज़ा ने अबू बकर, उमर और उस्मान और अली के फज़ाइल पर मुस्तनद और मोतबर किताबें लिखी हैं। उन किताबों को आप फतावा रज़िया में पढ़ सकते हैं, छपे हैं। मैं कहना यह चाहता हूँ, कोई जमाना न हक से खाली रहा है और न बातिल से खाली रहा है। जहाँ हक रहा है उसके मुकाबले में बातिल भी रहा है, जहाँ बातिल रहा है उसकी सरकोबी के लिए अल्लाह अल हक को पैदा करता रहा है। इमाम अहमद रज़ा ने अशरफ अली थानवी को जवाब दिया, कासिम नानोतवी को घेरा, सर सैयद अहमद को घेरा, अबुल आला मौदूदी का नातिका बंद किया, अबुल कलाम आजाद की कलई खोल करके रख दे। इन तमाम फितनों का मुकाबला इमाम अहमद रजा करते रहे। यह बरेली की शान है। मरकज इसी को कहते हैं कि हमला चाहे जिस जाविये से हो, जिस सरहद पे हो, चाहे मशरिक में हमला हो, चाहे मगरिब में हमला हो, चाहे शमाल में हमला हो, चाहे जुनूब में हमला हो, चाहे अंदर से हमला हो, चाहे बाहर से हमला हो, मरकज का काम यह है कि मरकज अपनी फौज भेजा करता है, मुकाबला किया करता है। सरहद में दाखिल होने वाले आतंकवादी चाहे पूरब से आए, चाहे पश्चिम से आए, चाहे उत्तर से आए, चाहे दक्षिण से आए, जिस रास्ते से आएंगे मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे। बिला शुबहा मुझे कहने दो कि अगर वहाबियत मस्जिद के सहारे आ रहे थे, नजदियत अगर नमाजों के सहारे आ रही थी, इमाम अहमद रजा ने उसका मुकाबला किया, अहले सुन्नत को मुतनब्बे किया। और अगर राफ़ज़ियत मज़ारों के जरिए आएगी, आस्थानों के जरिए आएगी, खानकाहों के जरिए आएगी, सियादत के नाम पे आएगी, तसव्वुफ के नाम पे आएगी, चादरों गागर के नाम पे आएगी, नियाज़ फातिह के नाम पे आएगी, ताज़िया गाज़िया के नाम पे आएगी, तो बिला शुबहा मरकज का भी मुकाबला करता है, उसका भी जवाब देता है। इमाम अहमद रज़ा ने उन फितनों का किला कमा किया, और ऐसा किला कमा किया, ऐसा किला कमा किया कि आज भी वहाबियत इस पोजीशन में नहीं है कि कोई वहाबी डंके की चोट पे कह सके कि वहाबी है। बल्कि उनसे कहिए कि तुम वहाबी हो तो कहते हैं नहीं, मैं वहाबी नहीं हूं, मैं तो मुसलमान हूं। लेकिन सुन्नी बरेलवी से कहो, लोग कहते हैं बरेलवी क्यों कहे? हम बरेलवी इसलिए कहते हैं कि जो असली होता है, वो ओरिजिनल होता है, अपने बाप का नाम बताने में, अपने खानदान का नाम बताने में हिचकिचाता नहीं है। और जो डुप्लीकेट होता है, जिसका आधार गलत होगा, अगर उससे कहा जाए आधार कार्ड दिखा दो, आईडी दिखा दो, घबरा जाएगा, चेहरा उतर जाएगा। वहाबी से कह दो तुम वहाबी हो, घबरा जाता है। लेकिन सुन्नी से कहो कि तुम बरेलवी हो, सीना तान के कहता है कि हाँ हम बरेलवी हैं, हम अजमेरी भी हैं, हम मारेहरवी भी हैं, हम बेलग्रामी भी हैं, हम बगदादी भी हैं। हम उन्हीं के बुनियाद पे पहचाने जाते हैं, हम उन्हीं के नाम से जीते हैं, उन्हीं के नाम से मरते हैं। आला हजरत का जमाना वो था, मुफ्ती आजम का जमाना आया, वो जमाना था कि मुसलमानों को काफिर बनाया जा रहा था, मुशरिक बनाया जा रहा था, शुद्धिकरण किया जा रहा था, उनको दीन से फिराया जा रहा था, लौटाया जा रहा था। खानकाहें बहुत हैं, लेकिन ये शान इमाम अहमद रजा के घराने की है। इमाम अहमद रजा का लाडला, इमाम अहमद रजा का शहजादा सैयदना सरकार मुफ्ती आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक दो दिन नहीं बल्कि 3-3 महीना। और वो जमाना वो है कि जिस जमाने में हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर और एसी कारों से नहीं बल्कि बैलगाड़ियों से, टांगों से, कहीं पैदल चला जाता था, पगडंडियों पे चला जाता था। उस जमाने में पंखे नहीं चल रहे थे, उस जमाने में आराम के गद्दे नहीं थे, और उस जमाने में इतने मालदार लोग नहीं थे, खाने पीने की इतनी सहूलतें नहीं थे। लेकिन सरकार मुफ्ती आजम के बारे में मैंने पढ़ा कि 3-3 माह तक आगरा और अलीगढ़ के राखों में रहे, और उन्होंने मुसलमानों को बताया कि मुसलमानों तुम्हारा दीन दीन इस्लाम है, और इस्लाम ही अल्लाह का नज़दीक सच्चा दीन है। शुद्ध तहरीक का मुकाबला
मुकाबला इमाम अहमद रजा के शहजादे सैयदना सरकार मुफ्ती आजम ने किया और उन्होंने मुसलमानों के दीन और ईमान की हिफाजत फरमाई। सरकार मुफ्ती आजम जा रहे हैं, दुनिया परेशान है, अहले हक परेशान है, उलमाए अहले सुन्नत परेशान है कि सरकार मुफ्ती आजम के बाद सुन्नियों का क्या होगा, कौन क़यादत करेगा, कौन रहनुमाई करेगा। किसी के ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि जिसे दुनिया अल्लामा अख्तर रजा खान कहती है वो सरकार मुफ्ती आजम की जगह ले लेंगे। लेकिन शारह बुखारी अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद शरीफ उल अकमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि सरकार मुफ्ती आजम को आखिरी जमाने में जो कबूलियत आम्मा हासिल हुई थी, अल्लामा अख्तर रजा खान अजहरी को इब्तदाई दिनों में वो मकबूलियत हासिल हो गई है। और बात वहीं तक नहीं है, आला हजरत के फैजान की शान ये है कि जब सरकार ताजुल शरिया जा रहे थे, बहुत से लोग समझ रहे थे कि मामला खत्म हो गया, बरेली की बिसात उलट गई। लेकिन आपने देखा कि हुजूर ताजुल शरिया गए और कायदे मिल्लत अल्लामा अफजल रजा को उन्होंने अता कर दिया। आप जिधर चले जाइए हर सू चर्चा अल्लामा अफजल रजा खान का है, हमारा कायद किस शान का है। अब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हुजूर ताजुल शरिया का जमाना आया, उस जमाने में देवबंदियत तो थी, गैर मुकल्लदियत भी थी। एक फितना आया जाकिर नायक का, ये क्या कहता है, ये ग्रुप कहता है कि हम अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। एक अरसे तक ये कहता रहा। जब हिंदुस्तान की पुलिस ने तलाश किया तो यहाँ से भागा, कहाँ भाग करके गया, सऊदी अरब गया, वहां से भाग के मलेशिया गया। मैंने बारहा कहा कि वो अल्लाह से डरने वाले वो हिंदुस्तान की पुलिस से क्यों डर रहा है। मालूम हो गया कि ये वहाबी अल्लाह से नहीं डरते हैं, बल्कि ये तो दुनिया की लालच में ऐसे पड़े हुए हैं कि पैसे वालों से डरते हैं, हुकूमत से डरते हैं, ये दुनिया वालों से डरते हैं। आज भाग करके वो अपना दीन लेकर के मलेशिया में चला गया है। एक फिरका आया और वो यहाँ से नहीं, हमें उन रज़वियों पे हैरत है, उन मौलवियों पे हैरत है कि जो अपने नाम के आगे रज़वी लगाते हैं, बरकाती लगाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरे हिंद पाक और बांग्लादेश में जो इस्लाम की ये हरी भरी खेतियां नजर आ रही हैं, करोड़ करोड़ की तादाद में जो मुसलमान नजर आ रहे हैं, पूरी दुनिया जानती है कि मुसलमान पहले से थे, लेकिन इतनी कम मिकदार में थे। ये मस्जिदों के मीनारे, ये मदरसे, ये खानकाहें, ये मज़ारात, ये इमाम, ये मौलाना, ये सब ख्वाजा गरीब नवाज की देन है। ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों की बरकत से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में इस्लाम फैला। अजमेर कहाँ है? इंडिया में है। किछोचा कहाँ है? इंडिया में है। दरगाह निजामुद्दीन औलिया कहाँ है? इंडिया में है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दरबार कहाँ है? इंडिया में है। मारहरा मुतहरा के मशाइख कहाँ है? इंडिया में है। कालपी के शहजादे कहाँ है? इंडिया में है। और बताओ, इन तमाम खानकाहों की नुमाइंदगी करने वाला इमाम अहमद रजा कहाँ है? हमारे अमीर कहाँ है? हमारे इमाम कहाँ है? हमारा मुजद्दिद कहाँ है? इंडिया में। लेकिन वो जो अपने नाम के आगे बरकाती लिखते हैं, कादरी लिखते हैं, मिसबाही लिखते हैं, रज़वी लिखते हैं, चिश्ती लिखते हैं, उनको एक नया दीन प्रोडक्ट किया गया। हालैंड से दीन आ रहा है। अब हालैंड से इस्लाम को समझा जाएगा, सुन्नियत को समझा जाएगा। उस शख्स का नाम कुछ और नहीं। अब तक लोग मौलानाओं से और पीरों से दीन समझ रहे थे, अब लोगों ने डॉक्टर से दीन समझना शुरू किया। एक शख्स टेलीविजन पे प्रकट होता है, उसकी तमाम खूबियां, उसके तमाम कमालात टीवी के पर्दे पे नजर आ रहे हैं। डॉक्टर ताहिरुल कादरी, आपके इमाम की दाढ़ी न हो, एक फतवा नहीं 1000 फतवा आ जाएगा, इसके पीछे नमाज नहीं होती है। लेकिन वो दाढ़ी मुड़ाने वाला, सरे शाम कोट पैंट पहन करके घूमने वाला, वो खुद भी पहले ही से ऐसा ही था और उसका बाप इससे बड़ा वाला था। ये दोनों के दोनों मक्कार। उसने जब अपनी मक्कारी और फरेबकारी को आम किया तो बहुत से सुन्नियों ने कहा कि बहुत बड़े अल्लामा है और ये तो आशिक रसूल है, तकरीर करते हैं तो रोते हैं। मैंने कहा आशिक नहीं है, अदाकार है, फिल्मी एक्टर है। हिंदुस्तान में होता तो किसी फिल्म में उसे निकाह पढ़ाने का रोल मिल जाता, या कोई इसी तरह का लैला मजनू टाइप की कोई पिक्चर बनती, उसमें उसको रोल दिया जाता। ताहिरुल कादरी का फितना आया, कोई खानकाह बोलने को तैयार नहीं, बल्कि बहुत से खाह मखाही तो ताहिरुल कादरी की चादर में लिपट करके वो जन्नत में जाना चाह रहे थे। लेकिन सुनो, जब ताहिरुल कादरी ने सुलह कुल्लियत को फैलाना शुरू किया तो कौन खड़ा होता है? हुजूर ताजुल शरिया खड़े होते हैं। और उसके खिलाफ जब आपने बयान दिया, जब आपने फतवा दिया, आपने देखा ताहिरुल कादरी का हाल क्या हुआ। ताहिरुल कादरी कहां पहुंच गया? बॉम्बे में आज से तकरीबन
30 साल पहले हमारे सुन्नी बाज उलमा ने एक तंजीम बनाई और उस तंजीम का नाम रखा गया उलमा काउंसिल। कहा गया कि इसमें सुन्नी भी होगा, इसमें शिया भी होगा, इसमें गैर मुक़ल्लिद भी होगा, इसमें देवबंदी भी होगा। तमाम खानकाहें खामोश हैं, तमाम दारुल इफ्ता खामोश हैं, तमाम मौलाना खामोश हैं, मुकर्रिर खामोश हैं। हुजूर ताजुश शरिया को जब ये बात मालूम होती है तो आपने फरमाया कि सुन्नियों, तुम बदमज़हबों से क्यों मेल कर रहे हो, तुम आपस में सुन्नी से मुत्तहिद हो जाओ। हुजूर ताजुश शरिया पे जो लोग ये इल्जाम लगाते हैं और हम लोगों पे कि ये लोग कभी लोगों को मिलने नहीं देना चाहते, हम कहते हैं कि सुन्नी सुन्नी से मिल जाए, तुम कहते हो सुन्नी वहाबी से मिल जाए। इसी को किसी ने कहा था कि मिसाले ताले तंबूरा अलग ये सबसे रहते हैं, जरा सी छेड़ के देखो मिले ये सब में रहते हैं। बात सुन्नियत की करते हैं, नाम आला हजरत का लेते हैं, जहां नजराना चाहिए वहां ताजुश शरिया का उर्स भी मना लेते हैं, लेकिन कहते हैं वहाबियों के साथ उठे बैठेंगे। तुम वहाबियों के साथ कहते हो कि हम जलसा करेंगे, अगर आवाम ने कहा कि फिर हम वहाबियों ही को चंदा देंगे, वहाबियों ही से मुरीद होंगे, वहाबियों के मदरसे में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, आपका क्या जवाब होगा? आवाम को कहते हो कि वहाबी से सलाम कलाम हराम है, तुम जलसों में जाते हो क्या तो मुंह बंद करके जाते हो क्या, हाथ अपना रोक लेते हो क्या, वहां जाके देवबंदियों से हाथ भी मिलाते हो, वहाबियों के सामने हाथ बांध के खड़े रहते हो, उनका नाम लेते हो। आवाम को किस मुंह से धोखा दोगे, कैसे रोकोगे? आज आवाम में जो सुलह कुल्लियत फैल रही है वो इसी बुनियाद पर कि जब हमारा मौलाना खुद सेल्फी लेता हुआ नजर आ रहा है, जब हमारा मौलाना फोटो खिंचाता हुआ नजर आ रहा है, नाम में उसके रज़वी लगा हुआ है, खलीफा लगा हुआ है। मैं कहता हूं ऐसे लोग खलीफा नहीं है, ये खलीफा हो जाए यही बहुत बड़ी बात है। ये हुरूफ़े तहज्जी का फा है, ये खलीफा नहीं है, वो मुरीद नहीं है, वो किसी और का मुरीद होगा। बहुत से ऐसे हैं कि उनका अमल तो ऐसा है कि किसी मूंगफली बेचने वाले का भी अमल नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि हम अताए मुफ्ती आजम है। अरे हम कहते हैं तुम आता मुफ्ती आजम की कैसे हो सकते हो, किसी ऐसे वैसे की खता होगे वो और बात होगी कि तुम लोगों ने अपने नामों में ये अच्छे अच्छे नाम रख लिए हैं। जैसे किसी के घर बच्चा पैदा हुआ, बच्चा लंगड़ा लूला काला कलौटा, अब वो पहुंचा हजरत अल्लामा मुफ्ती शकील साहब के पास कबाब, कहा कि हजरत बेटा हुआ है नाम रख दीजिए। इनको क्या पता है कि ये रिक्शा चलाने वाले का बेटा है या मूंगफली बेचने वाले का बेटा है। इन्होंने कहा कि उसका नाम आलमगीर रख दो या उसका नाम कमरे आलम रख दो। अब किसी ने देखा, उसने समझा कि कमरे आलम का मतलब बड़ा खूबसूरत होगा, हसीनो जमील होगा, लेकिन देखा तो सर से पैर तक एक ही तरह नजर आ रहा था। इसी तरह कुछ लोगों ने अपना नाम तो अच्छा रख लिया है, काम अच्छा नहीं है। लखनऊ में एक पुलिस वाले ने कहा, बहुत सारे हमारे पुलिस वाले भाई बैठे हुए हैं, पुलिस वालों का भी दिल होता है। उन नाव के एक पुलिस वाले थे, उन्होंने लखनऊ के मजहबी माहौल पे तबसरा करते हुए कहा कि हजरत क्या बताएं लखनऊ के बारे में। वो इलावे में थे, कहने लगे कि यहाँ का मजहब मसलक तो ऐसा है कि पूछती क्या हो मेरा मसलक मुन्नी, मैं शियों में हूँ शिया और सुन्नियों में सुन्नी। यानी बेगम ने पूछा कि तुम शिया हो तो कहा कि शिया है, कहा कि सुन्नी हो तो कहा कि सुन्नी है। यानी जहाँ जैसा वहाँ वैसा, बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बाबर हमन राम राम, ये मुसलमान का तरीका नहीं। सुलह कुल्लियत का किला हुजूर ताजुश शरिया ने ऐसा कमा किया है कि आज भी सुलह कुल्ली हैरान परेशान है। अल्लाह ताला हुजूर ताजुश शरिया के फैज़ व बरकत से हम सबको मालामाल फरमाए और उनके सच्चे जानशीन कायदे मिल्लत आज भी हमारा कायद सोया नहीं है, बल्कि ऐसा जगता हुआ है कि जिसके ऊपर आला हजरत का फैजान जारी है, मुफ्ती आजम का फैजान जारी है, वो बरकतें जारी है। लाख लोग कुछ भी कहें, लेकिन दुनिया जानती है कि शेर का बेटा शेर होता है, शेर का बेटा शेर होता है, वो बादशाह है, उनके मुकाबले में न कोई पीर है। याद रखो, अगर कोई पीर साहब या सैयद साहब बदअकीदगी को फैलाएंगे तो हम नस्ब की बुनियाद पे बदअकीदगी को बर्दाश्त न करेंगे। किसी मजार से, किसी खानकाह से अगर हजरत अमीर मुआविया की तौहीन होती है, अबू बकर उमर को बुरा कहा जाता है, उम्मुल मोमिनीन को बुरा कहा जाता है, तो याद रखो कि हमने जिस तरह वहाबियत का रद्द किया है, नेचरियत का रद्द किया है, मौदूदियत का रद्द किया है, उसी तरह राफजियत का रद्द किया है और उन राफजियों का भी रद्द करेंगे कि जो सुन्नियों की खानकाहों में छुपे हुए हैं। मैं तो कहता हूं कि मैं अहले सुन्नत को चाहिए कि आप अपनी मस्जिदों में तकरीरें करें कि इन मुजाविरों को हरगिज हरगिज एक पैसा ना दे, वहां जो जानवर है उन जानवरों को खाना खिला दे, लेकिन इन दरमुंडे मुजाविरों को, बेनमाजी मुजाविरों को, ताश खेलने वाले
मुजाविरों को, मसलक के आला हजरत के बाकी मुजाविरों को, अमीर मुआविया को गालियां देने वाले मुजाविरों को एक पैसा ना दो, उनके गेस्ट हाउस में ना क़याम करो, उनके हाथों से चादर न चढ़वाओ, उनके हाथों से आप लंगर न खिलवाओ, इसलिए कि तुम्हारे पैसों से ये ऐश करने वाले मसलक के आला हजरत के साथ गद्दारी कर रहे हैं, मसलक की तौहीन कर रहे हैं, हमारे बुजुर्गों को गलत कह रहे हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में कोई मुजाविर बैठा हो या कहीं और बैठा हो, अगर वो रसूलुल्लाह के किसी सहाबी और चहीते को गालियां देगा तो सब खामोश रह सकते हैं, बरेली खामोश नहीं रहेगा, बरेली खामोश नहीं रहेगा। सर सुए रोजा झुका, फिर तुझको क्या, दिल था साजिद नज दिया, फिर तुझको क्या, तेरी दोजख से तो कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रजा, फिर तुझको क्या। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।